Good afternoon, student. Today we are going to discuss the next topic of Unit 3rd, that is the PhD of the line coding. PhD means the power spectral density, and already we know about the different type of the line coding which are used in the digital communication, just like unipolar RZ, RZ unipolar, NRZ polar, RZ polar, bipolar, and Manchester coding. Now, as we know about the power spectral density basically correlate the power of the any coding with respect to the frequency. So I am going to take one by one line coding. In this topic, we are already discussed about the four type of the power line coding, like an RZ unipolar format and an RZ polar format and polar format, and last one is the Manchester coding. Now the first is the power spectral density of an RZ unipolar format. First of all, I am going to explain what is the an RZ unipolar format. An RZ unipolar format in that means if we take the binary digit like that, then what is the unipolar format? In this format, here we take the reference point, and this is the binary 1, and binary 1 can be represented by the amplitude A over the whole period, and 0 is represented by the 0. This is the this is the an RZ unipolar format representation of the binary that is in the form of the 0 and 1. So simply here we can say that there is the two levels which are used for this line coding, that is 0 and A. That is the binary 1 represented by the A for whole the period, and binary 0 represented by the 0 volt. Now to calculate the power spectral density, we have to find some parameters like autocorrelation function and the Fourier transform of the pulses which are used in the line codings. Now first of all, I'm going to explain how to get the autocorrelation function between the waveforms. As you know, autocorrelation function defined as the similarity between the signals, two signals or two functions which are used in the coding technique. Now for the simplicity, the first paragraph C, for simplicity let us assume that 0 and 1s are equally likely to happen and have the equal probabilities. Means जो हमारे 0 and 1s बाइनरी फॉर्म में हैं उनकी जो probabilities है वो इक्वी probable है, means having the probability 1/2 and 1/2. And now also we know that discrete random source, for a discrete random source it characterized by the following autocorrelation function. This is the formula of the autocorrelation function R tau n और E bracket में AK and AK minus 1. Okay, and here AK simply represent the amplitude of the signals, or E or AK minus 1 is simply represent the shifting of that signal, इन डिलेड वर्जन मीन्स कुछ डिले करके आपके वर्जन्स को यहाँ पे सिग्नल्स को लिए गए और उनके बीच में हम मीन्स को फाइंड करते हैं, और मीन्स दैट वी गेट आफ्टर गेटिंग द मीन वी गेट द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. Now here there are the different values of n, means n is ranges from minus infinite to infinite. Now here we take the two cases for n is equal to 0 and for n not equal to 0. For n is equal to 0 means we can say, means here is a signal like that. Signal like that means here simply we take waveform like that, and second waveform like this. Means here is a probability, there is the similar, there is no shifting in the these two signal, means
अगर आपके अगर आपके सिग्नल का बाइनरी 1 है तो सेकंड का भी 1 होगा और जीरो का 0 होगा. Means here there are the two possibilities of the signal, that is otherwise or 0 0 or 1 1. तो आपको ये पता है फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0 here is the two possibility. Also if you place here n is equal to 0, then we get the auto correlation function alt of n is equal to e ak ak and e ak square, and here is the two values 0 and 1 having the amplitude for 0 is 0 and 1 for the a. Now the formula of the eak square is equal to amplitude of that symbol into probability of that symbol. This is the formula, and here there is the two symbol 0 and 1. Then the formula is ak square corresponding to 0 square, and the probability of ak is equal to 1 by 2 plus a square plus probability of ak is equal to a. Now here the first term, this term is equal to 0 because this will be the multiply by the 0, then we get here the value 0, and after that here this amplitude square multiplied by the probability ak is equal to a, that is 1 by 2, and after solving we get overall autocorrelation function for this n is equal to 0, that is a square by 2. This is the first case. Now also let us consider the next case for n not equal to 0. For n not is equal to 0, n not is equal to means 0, the waveform like that. I'm going to explain deeply in this topic because further it's used in the next line coding techniques, like shifting like that. Means if we take the first waveform like that, and now other if we take shifting like that, there is the probability of the first 1 0 0 1 then 1 0 and 0. तो मतलब इस तरीके से आपके टोटल जो अगर प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगे मीन्स जस्ट लाइक द 2 बिट्स कॉम्बिनेशन लाइक दैट 0 0 0 1 1 0 and 1 1, and in the amplitude form it can be represented like that 0 0 0 0 0 को 0, 1 को a से, फिर 1 को a, other is 0 and last 2 is a. And also consider here the probability 1 by 4 for each case, means all the possible outcome having equal probabilities. Now there is a 4 outcome, the probabilities is equal to the 1 by 4 for each possible case. Now again using this formula, if we use this formula in this case also, then we can say the for upper 3 case the amplitude will be 0 but probability is 1 by 4, but the amplitude will be 0 and simply the one possible outcome is only there, or having the probability 1 by 2, then what will be the autocorrelation for n not equal to 0? In that case here we can see like here alt of n is equal to e ak minus 1. So for 3 outcome 3 into 0 into 1 by 4 plus there is only the one possible outcome are left, that is a square into probability 1 by 4, means the first term is equal to 0, and finally we get the autocorrelation between for this one ak and ak minus 1 is equal to a by 4. Now here considering the two case, finally we get the autocorrelation function alt of n is equal to a square by 2 for n is equal to 0,
and a square by 4 for n not equal to 0. So this is a very important role. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें ऑटो कोलेशन फंक्शन को फाइंड करने का. हमें यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ एन वी टेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज एंड आफ्टर दैट हियर वी गेट द ऑटो कोलेशन बिटवीन द two signals. One is the shifted version and one remains same. Now again one more important things that the हमें here also we have to consider the pulse, which type of the pulse, हमारा पल्स किस फॉर्म का होना चाहिए. जैसे अभी हमने पल्सेज हमें दिखाया, मैंने जिसके एक पल्स लिया हमने वन को जो ए से रिप्रेजेंट दिखाया, तो वो हमारा एक रेक्टेंगुलर पल्स था. तो हम पल्स जो डिसाइड करेंगे बिकॉज हियर ऑल्सो इन द फार्मूला ऑफ द power spectral density and there is also the term of the Fourier transform of the basic signals. In that case here we take the basic pulse pt is the rectangular pulse of unit amplitude and duration tv. तो हमने इस केस में हमने जो यहाँ पे पल्स को लिया हुआ है, पल्स एक रेक्टेंगुलर पल्स लिया हुआ है और वो रेक्टेंगुलर पल्स का एम्पलीट्यूड यूनिटी है एंड हैविंग द ड्यूरेशन टी बी, और उसका ड्यूरेशन क्या है, टी बी है. hence the Fourier transform of the rectangular pulse and the Fourier transform of rectangular pulse simply if we take the pulse like means having the amplitude a unit amplitude and tb is the duration, then इस बेसिक पल्स का हमारा जो Fourier ट्रांसफॉर्म होगा, सिंपली हियर वी गेट द सिग्नम फंक्शन लाइक दैट पी एफ इज इक्वल टू टी बी साइन सी एफ टी बी. और ये आपको यहाँ पे ये Fourier ट्रांसफॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी नो अबाउट कि इफ़ यू टेक द Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ द यूनिट एम्पलीट्यूड एंड द ड्यूरेशन टी वी इज इक्वल टू टी बी साइन सी एफ टी बी. ये ऑलरेडी नोन फंक्शन है, तो डायरेक्टली हम इसका डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, तो हियर हमने यहाँ पे Fourier ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया पल्सेस का, हमने ऑटो कोरिलेशन हमने फाइंड कर लिया एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द पीएचडी. तो पीएचडी के लिए फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे राइट किया गया है द फार्मूला ऑफ द पीएचडी. ओके, now this is the formula of the PSD. Spectral density is given by formula this SF is equal to 1 by 2 and mod of PF square means mod of the Fourier transform square is summation n is equal to minus infinite to infinite r tau n e to the power minus j 2 pi n ft. This is the formula and here we have all the values like PF and also the values of r tau. Now simply place the value one by one. Here t replaced by the tb and already the power Fourier transform rectangular pulse is equal to tb sine signum function ftb, that is the whole of square, and this summation break into the two part, that is one is the for n is equal to 0 and second is for not equal to 0. नाउ द फर्स्ट टाइम सिंपली टेक हियर, ये फर्स्ट टाइम आपका वो केस है जब n नॉट इक्वल टू 0 है. उस केस में हमारा जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन उसकी वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 4 है एंड समेशन इज हियर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड e टू द पावर माइनस j 2 pi n f t. दिस इज द फार्मूला. नाउ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 फॉर a स्क्वायर बाई 2, सिंपली n इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर बाई 2 हो गया e टू पावर माइनस j 2 pi n f t. एंड इफ़ यू प्लेस हियर n इज इक्वल, क्योंकि किसी भी n इज दिस टर्म इज डिपेंड वनली ऑन द n इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ यू प्लेस n इज इक्वल टू 0 देन दिस e टू द पावर टर्म e टू पावर इज इक्वल e टू पावर 0 एंड e टू पावर 0 वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो सिंपली द सेकेंड टर्म वैल्यू गिव द वैल्यू a स्क्वायर बाई 2. And simply we can say the second term give value a square by 2, and after that the next line will be the tb simply after simplification we get tb
एंड साइन स्क्वायर सिग्नम फंक्शन स्क्वायर एफ टी बी ब्रैकेट में हमने यहाँ पे जो यहाँ पे सेकेंड टर्म को पहले लिख दिया प्लस ए स्क्वायर बाई 4 एंड समेसन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एन एफ टी and this case is defined for that n not equal to 0. Now this overall function can be replaced by del f, and here del f, that is impulse function. Actually this term जो आपका term ये brackets के बाहर है, this is multiplied to both the term, this one and this term, and if you multiply this term with a square, simply we get a square upon 2 tb sin signum square f tb function होगा, and this also term multiply with this term, but here this term can be replaced by the impulse function, and as you know impulse function defined only at t is equal to 0 if there is a time domain, or f is equal to 0 if there is a frequency domain. But here we assume and del f is equal to, हमने यहाँ पे जो del f को assume किया हुआ है, del f like this, del f is equal to minus infinite से infinite e to power minus j 2 pi n f tb is equal to 1 upon tb, summation m is equal to minus infinite से infinite del f minus m upon tb. तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इम्पल्स फंक्शन का शिफ्टिंग है. अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ द मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 1 अपॉन टी बी, मीन्स हियर written in the form of them, if the value of m ranges from minus infinite to infinite, that is the integral multiple of the number, that is plus minus 1 upon tb plus minus 1 upon 2 by tb plus minus 1 upon 3 upon tb or so on, then simply it we can say this function, this del function, impulse function defined only at the frequency plus minus 1 upon tb plus minus 2 upon tb and plus minus 3 upon tb. Okay, and as we know the impulse function, the signum function already जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है सेकेंड टर्म के साथ, मीन्स दिस फंक्शन, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि आपका जो ये वाला फंक्शन है ये सिर्फ डिफाइन होगा मल्टीपल ऑफ द प्लस माइनस 1 अपॉन टी बी. यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन है, बट एट दिस वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू पे सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, जीरो होता है, एज यू नो, क्योंकि हम पता है सिग्नम फंक्शन हमारा इस तरीके से होता है. अगर हम डिसाइड करें सिग्नम फंक्शन हमारा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ये ऐसे ऐसे करते चला जाता है. तो सिग्नम फंक्शन ये जो हमारा होता है, दिस इज़ द ये जीरो होता है, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी बी, एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन टी बी. तो वी कैन से जहाँ पे हमारा इम्पल्स फंक्शन डिफाइन है उस पर हमारा सिग्नम फंक्शन क्या है, जीरो है, और जहाँ पे हमारा इम्पल्स फंक्शन नॉट डिफाइन है, जहाँ जीरो है, तो वहाँ पे हमारा सिग्नम फंक्शन आप कुछ ना कुछ वैल्यूज है. तो फाइनली वी कंक्लूड दैट, हम यहाँ पे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हम सिंपली हम यहाँ पे इसको इम्पल्स फंक्शन में दिखा दें, और उस इम्पल्स फंक्शन को यूनिट एम्पलीट्यूड दिखाने के साथ साथ हम यहाँ पे उसको बस दिखा दें कि उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन टी बी प्लस माइनस 2 अपॉन टी बी प्लस माइनस 3 अपॉन टी बी पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन है. तो ऑलरेडी हमने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ को रिप्लेस किया हुआ है, लाइक दैट, वेयर del f is the unit impulse function at f is equal to 0, and the signum function passes through 0 at f is equal to plus minus n upon tb. अभी मैंने बोला तो सिग्नम फंक्शन हमारा जीरो पास होता है, जहाँ पे फंक्शन हमारा del f डिफाइन है, इसलिए सिग्नम फंक्शन जो टर्म यहाँ से हट जाएगा, एंड सिंपली वी गेट द सेकेंड टर्म जस्ट लाइक दैट, दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 4 del f. तो सिर्फ आपको ये वैल्यू डिफाइंड होगी. तो मीन्स फाइनली हियर वी गेट द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ यूनिपोलर एनर्जेड यूनिपोलर फॉर्मेट, और सिंपली वी गेट द फर्स्ट टर्म in the term of the signum function and second term in the term of the unit impulse function. So this is the overall we can say this is the overall formula for the
This is the overall formula, and for the PSD of the enlarged unipolar format. This is the first case. Okay. Now let us consider the next case. Okay. Now first of all, I'm going to explain what is the representation of the enlarged polar format. Like if we take the binary 1 and 0, and representation a can be represented by plus a and 0 can be represented by minus a एंड माइनस ए, ये आपका होता है रिप्रेजेंटेशन इसमें. तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन पोलर इन एनर्जेड पोलर फॉर्मेट में मीन्स किस तरीके से 1 को हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को हम माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं. आफ्टर दैट अगेन वी टेक द सेम कंडीशन already discussed in the enlarged unipolar format. Like we know that autocorrelation function is equal to e ak minus 1. For n is equal to 0, there is the possibility of 0 0 or 1 1, and here 0 can be represented by the minus a and also minus a, and minus a or minus a multiply we get the a square, and for 1 1 also we get the a square. And now putting in this simply amplitude into the probability. हियर ये जो आपका टर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए. सिंपली हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इफ़ मेक द नोट, सिंपली मेक द करेक्शन हियर. सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका ए स्क्वायर हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इज इक्वल टू 0 हमारा क्या है 1/2 है. तो आफ्टर दैट वी गेट द हियर a square by 2. सिमिलरली ऑल्सो हियर ऑल्सो वी गेट a square by 2 एंड आफ्टर एडिशन एंड वी गेट a square. तो आपको यहाँ पे a square का टर्म मिल गया. ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप लोग यहाँ पे. मीन्स या तो आप ये करेक्शन कर लें या तो वन मोर करेक्शन. हमने नीचे पहले हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को 2 से जो डिवाइड कर दिया है इसको अब नेक्स्ट स्टेप में करें. देन वी गेट इन मीन्स नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा a square by 2 प्लस a square by 2 इज इक्वल टू a square. आप ये कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपको आई थिंक सो ये कुछ समझ में आपको आया होगा. एंड आफ्टर दैट now for n is equal to 0, n is equal to 0 में वही again there is the 4 possible combination 0 0 0 1 1 0 and 1 1 ये लिखेंगे. and according to in the amplitude form written like this. and the first possible के लिए a square हो गया, second के लिए minus a square, and third के लिए minus a square, and फिर last is again a square. now if we find the autocorrelation for n not is equal to 0, and we get also having the probability. I mean simply अगर आप देखें इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. मीन अगर सिंपली आप इसके यहाँ पे राइट करें, किस तरीके से राइट करेंगे आप. पहले के इसके लिए a square by 4 अगेन माइनस a square by 4 माइनस a square by 4 एंड प्लस a square by 4. तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट एंड सिंपली वी गेट 0 ईयर. मीन्स फॉर n नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा जो आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मिलेगा वो 0 मिलेगा. नाउ सिंपली इफ़ यू सिंपली इन सिंप्लीफाइड फॉर्म दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. r tau n इज इक्वल टू a स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर n नॉट इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन हियर we use the formula. सिंपली फार्मूला आपको ऑलरेडी नोन है, अभी मैंने पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था. लाइक फार्मूला इज द एस एफ इज इक्वल टू 1/t mod of p of square summation n is equal to minus infinite से infinite, then autocorrelation function, and then e to power minus j 2 pi nft.
or as you know, according to this relation, here we take here we see the autocorrelation defined only for n is equal to 0. Now if we place in this summation n is equal to 0, and we get on this place the a square into e to the power 0 is equal to 1, and finally and place this pf value वही हमारा rectangular pulse है having unit amplitude and duration tv. And after that we get, after putting all the values and tv cancel out, and we get the phd of this line coding is equal to a square tv and signum function square f tv. This is the second part. तो आई थिंक सो बहुत इजी वे रहा आपको, क्योंकि हमें मेन जो हमारा रोल यहाँ पर है, जो आपका जो रेक्टेंगुलर पल्स आपने जो मान लिया बहुत इजी वे मानने की वजह से, और प्लस क्या होता है कि हमने जो यहाँ पे मान लिया है उसको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो डिफाइन करना है। अगर आपको ये अगर समझ में आ गया किस तरीके से हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को फाइंड कर रहे हैं, तो आप इजीली भी किसी भी लाइन कोडिंग आप पीएचडी को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ओके, the power spectral density for the NRZ bipolar format. In the NRZ polar format, and for the there is the three labels which are used for zero. जीरो के लिए हम यहाँ पे जीरो यूज करते हैं, बट इफ़ देयर आर द रेगुलर बिट स्ट्रीम ऑफ वन, देन वन बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ए, एंड नेक्स्ट बिट अगर फिर से अगर आपका वन है तो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव पोलैरिटी। मीन्स अगर आपका इसके पहले जो प्रीवियस बिट अगर वन से है तो नेक्स्ट कमिंग वन बिट होगा उसको माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयर आर द थ्री लेबल्स विच आर यूज्ड इन द बाइपोलर फॉर्मेट, लाइक ए और माइनस ए आपका है, और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होगी, तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इक्वली डिवाइड करने का इन द सेंस क्या है कि जो हमारा बाइनरी जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, बट रिमेनिंग 2 फॉर द एम्पलीट्यूड 1/4 एंड फॉर ए के इज इक्वल टू ए एंड ए के इज इक्वल टू माइनस ए, वी गेट द प्रोबेबिलिटी 1/4। ये चीज़ होगा, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे जो चीज़ें मानी गई हैं प्रोबेबिलिटीज़। मीन्स वन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ओवरऑल 1 होना चाहिए, बट देयर इज़ द 2 पॉसिबिलिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड ए एंड माइनस ए, देन हियर वी टेक द एम्पलीट्यूड 1/4 एंड 1/4, एंड फॉर द जीरो हियर वी टेक द 1/2। आफ्टर दैट फॉर n is equal to 0, this is the formula, e k square is equal to amplitude square into probability ak is equal to a plus 0 square, and the probability of ak is equal to 0, and minus a square probability of ak is equal to minus a. Now putting all the values, and we get a square upon 4 plus 0 plus a square upon 4 is equal to a square by 2. Means for n is equal to 0, here is the probability of a square by 2. And after that again here we take, and for n is equal to 1 या और n is equal to -1, या सिंपली हमने यहाँ पे n is equal to 1 को प्लेस किया हुआ है। देयर आर द 4 पॉसिबिलिटीज़, इन 4 प्रोबेबिलिटीज़ इफ़ देयर इज़ द, अगर आपके ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, देन फॉर दिस 3 कॉम्बिनेशन, इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए तो हमारा जो ये फाइंड होगा ई ए के -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट द लास्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ 1 1। ये जो कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपका अगर आप पहला 1 अगर ए से है, सेकेंड आपका माइनस ए से प्रेजेंट होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -a², और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपकी 4 होगी, और रिमेनिंग 3 के लिए क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है फॉर n इज इक्वल टू 1, उसके लिए हमारा क्या है कि आपका ये -a²/4 होगा। सिमिलरली इफ़ यू take also the for n is equal to -1, in this case also we get the auto correlation function -a²/4. So in general we can say the auto correlation function only defined for n is equal to 0, and for also for n is equal to ±1.
बट फॉर एन ग्रेटर देन 1 इट विल बी नॉट डिफाइंड, इसके लिए हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो सिंपली वी कैन से जीरो वैल्यू। नाउ ओके, फॉर ये हमारे 3 केसेस मिले, आपने राइट किया हुआ है। देयर फोर एच एफ इज इक्वल टू वही फार्मूला 1/t पी एफ मॉड ऑफ पी एफ का स्क्वायर समेसन आई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर टाउ एन ई टू पावर माइनस जे टू पाई एन एफ टी बी। और हियर इज द 3 टर्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू +-1। ये वैल्यूज़ आपकी हो गए। तो ये तो सिंपली हमने वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। एंड इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फॉर n इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे टर्म रखेंगे 0, तो e टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर हो गया। एंड आफ्टर दैट माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फॉर रिमेनिंग 2 केसेस। हियर वी प्लेस 1 by 1 वैल्यूज़ ऑफ n। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वैल्यू, if you take the value +1 then we get the term e to the power j2 pi ftb, and if you take the -1 then we get the term e to the power plus j by 2 2 pi ftb, and for 1 e to power minus j2 pi ft. After that simple calculation here and take out the a square by 2 from here। हमने a square by 2 कॉमन ले लिया, tb and signum function आपका स्क्वायर सी एफ टी बी, and here 1 minus, and this after solving e to the power plus j2 pi ftb plus e to power minus j2 pi ftb and is equal to we get 2 cos 2 pi ftb। एंड ऑलरेडी आपका नीचे यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है क्योंकि हमने अभी a स्क्वायर 2 का हमने बाहर लिया हुआ है, तो 2 कैंसिल आउट। सिंपली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स का यहाँ पे रिलेशंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन यूज करने में से ये चीज़ें हो रही हैं। एंड फाइनली वी गेट हियर and after solving and we get a square by 2 tp and signum function square c f tb। एंड आफ्टर इसको भी आप सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो गया। सिंपली हियर वी गेट a स्क्वायर टी वी साइन स्क्वायर सी एफ टी वी एंड डॉट एंड साइन स्क्वायर पाई एफ टी वी। तो ये आपको मिल गया बाइपोलर फॉर्मेट का, आपको ये मिल गया, पीएचडी मिल गया, इजली आपने फाइंड कर लिया। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द लास्ट वन। लास्ट आपका जो पार्ट है ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, वो चीज़ आपको देखना होगा। like last one is the power spectral density of the मैनचेस्टर कोडिंग। मैनचेस्टर कोडिंग के लिए जो हमारे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहाँ पे हमें यहाँ पे अगेन वी आर एज्यूमिंग फॉर द हैविंग द प्रोबेबिलिटीज 0 and 1 एंड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस फॉर्मेट इज सेम एज दैट फॉर द एनर्जेट पोलर फॉर्मेट। जो हमने एनर्जेट पोलर फॉर्मेट की जो हमने फॉर्मेट्स को जो माना था वही फॉर्मेट ले लेंगे, मीन्स ए स्क्वायर। but here in previous all the 3 line coding and we are using the pulses like rectangular pulse having unit amplitude and of duration tb, but in that case यहाँ पे आपके कुछ complexity होती है, means here we are using the pulses like that। ऑलरेडी ये फिगर में दिखाया जा चुका है। आप फिगर में जब नोट्स आप बनाए तो एक करेक्शन आप ज़रूर कर लें। यहाँ पे नोट्स में एक मिसप्रिंट है जो यहाँ पे मैंने पिक लिया था, मिसप्रिंट है कि आप यहाँ जो लेवल को डिफ़ाइन करेंगे ये -1 की जगह +1 जगह -1 को आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, तो आपकी ईजी होगा सॉल्व करने में। एक्चुअली होता क्या है कि ये आपको ओवरऑल ये हाफ ड्यूरेशन में ही ये आपको फुल टाइम टीवी के लिए हाफ ड्यूरेशन में ऐसे दिखाते हैं, हाफ ऑफ पोर्शन दिखाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब यहाँ पल्सेस के जूम करेंगे लाइक दैट ये हमने पीटी मान लिया हुआ है, पीटी इज इक्वल टू +-1 फॉर -TB/2 से 0, ये आपका होता है। एंड आफ्टर दैट एंड अगेन उसको हमें दोनों साइन लेके चलेंगे। फिर जो सेकंड वाले में देखिए आपका माइनस प्लस लिखा हुआ, -+1 फॉर 0 से TB/2।
मीन्स जो पोलैरिटी आपकी माइनस टी बी बाई टू से जीरो के बीच में होगा उसका अपोजिट पोलैरिटी आपका जीरो से लेकर टी बी बाई टू के बीच में होगा, ये होगा। तो ये पी टी आपका हो गया। तो अब हमें यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना होगा और कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज यहाँ पे आपके यूज होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है आपके यहाँ। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करना चाहें तो सिंपली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी टी इज गिवन बाई पी एफ इज इक्वल टू there is the two values of pt, that is minus tb by 2 से 0 plus minus 1 e to power minus j 2 pi ft dt and plus 0 से tb by 2 and minus plus 1 e to power minus j 2 pi ft। now second line simply we integrate this one, हमने यहाँ पे प्लस माइनस वन को बाहर ले लिया हुआ है, बाहर ले लिया हो। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे e टू पावर माइनस जे टू पाई एफ टी, और आप इंटीग्रेट करेंगे वी गेट e टू पावर माइनस जे टू पाई एफ टी और अपॉन में माइनस जे टू पाई एफ। ये आपको सिंपल इंटीग्रेशन, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड लिमिट इज रेंजेस फ्रॉम माइनस टी वी बाई टू से लेके जीरो तक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज द माइनस प्लस, अगेन वी इंटीग्रेट वी गेट e टू पावर माइनस जे टू पाई एफ टी अपॉन माइनस जे टू पाई एफ एंड इट्स लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू टी वी बाई टू। ये हो गया। And after that simple after putting the values, if we plate the limit and we get this one, this pf, and pf is equal to plus minus 1 upon minus j 2 pi f and e to power 0 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, e to the power j pi f tb ये आपकी वैल्यू हो गई। अगेन जब इस वाले टर्म में आप लिमिट को प्लेस करेंगे वी गेट दिस वन। तो हियर वी गेट इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी टी वी गेट द टू टर्म एंड अगेन वी टेक द वन बाई वन टर्म एंड यूजिंग द सम ट्रिग्नोमेट्री रूल एंड वी गेट द फाइनली वी गेट द रिलेशन। तो मैं सिंपली वन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ किस तरीके से ये किया जा रहा है, बाकी हम नेक्स्ट को देख लेंगे। ओके, now here we take the first term separately plus minus 1 upon minus j 2 pi f, और हमने यहाँ पे ये जो आपका वन था, तो और मैं क्लियर कर दूँ ज़रा मैं आपको, मैं इस वन को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस जे पाई एफ टी वी बाई टू इंटू ई टू पावर माइनस जे पाई एफ टी वी बाई टू, और इसको भी मैं इसको टी वी को दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ टी वी बाई टू के फॉर्म में, ई टू पावर माइनस जे पाई एफ टी वी बाई टू एंड ई टू पावर माइनस जे एफ टी वी बाई टू। एंड हियर वी टेक द कॉमन ई टू पावर जे पाई एफ टी वी बाई टू कॉमन एंड दिस विल बी ऑल्सो द आउटसाइड एंड हियर वी गेट द वैल्यू लाइक दिस एंड सिंपली हियर ऑन सॉल्विंग या सिंपली convert the e to power minus j pi f tv by 2 term in the form of the constant sign and simply here we get this term plus minus 1 upon pf ऑलरेडी यह टर्म हमारा e टू पावर j पाई f tv by 2 एंड फाइनली हियर वी गेट द साइन पाई f tv by 2। ये आपके टर्म्स यहाँ लिखे गए, वीडियोली आपको दिख रहे हैं आपने। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसमें अधिक मुझे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद से आप बैठेंगे करेंगे तो ऑलरेडी ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। मुझे स्टेप बताना किस तरीके से किया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट अगेन आप जब सेकेंड टर्म को लेंगे तो सेम प्रोसेस, सेकेंड टर्म को जो हमने लिया हुआ है सेम प्रोसेस, जो स्टेप्स आपने फॉलो किया हुआ है, किस तरीके से आपने वन को रिप्लेस किया हुआ है। जैसे वन को इस तरीके से तोड़ा हुआ है, फिर इसको आपने इस तरीके दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, फिर आपने ई टू पावर माइनस जे एफ टी वी बाई टू आपका कॉमन हो गया एंड वी गेट हियर ऑल्सो सिमिलर टर्म, सेम आपको वही सिमिलर टर्म मिलेगा, बट देयर इज़ द डिफरेंस। क्या है कि डिफरेंस आपको दिख रहा है सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। यहाँ आपका प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ आपका ये प्लस का साइन ई के पावर में तो यहाँ आपका माइनस साइन है। बाकी यहाँ पे भी आपका साइन का टर्म मिला हुआ, साइन पाई एफ टी वी बाई टू आपका साइन टर्म यहाँ मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपका क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को यूज किया गया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज करने के बाद सिंपली इसको रीअरेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ द कॉस एंड साइन एंड वी गेट द टर्म लाइक दैट। आफ्टर दैट हियर वी गेट द टर्म, हमें यहाँ पे टर्म्स मिल गए, हमने फिर से उनको राइट किया एंड
राइट करने के बाद दोनों टर्म राइट किया है, फिर हमने कुछ कॉमन आउट किया, ये हमने कॉमन आउट किया प्लस माइनस 1/πf साइन पाई एफ टी वी बाई टू। एंड तो ये प्लस माइनस साइन था, तो ये मैंने प्लस बाहर, लेकिन यहाँ हमारा माइनस प्लस का साइन था, इसके लिए हमने यहाँ पे ये निगेटिव साइन को लेफ्ट करेगा। ठीक है, ये हमें खास कर यहाँ ध्यान देना, इसलिए मैंने आप इंडिकेट कर दिया। एंड आफ्टर दैट इज इक्वल टू अगेन वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हियर, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे। और हमने यहाँ पे प्लस माइनस ओपन, हमने यहाँ पे 2j से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म एंड अगेन वी गेट द साइन पाई एफ टी वी बाई टू। आपको टर्म यहाँ मिल जाएगा, जो चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखी भी गई हैं। एंड एट लास्ट अगेन आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म एंड वी गेट पी एफ इज इक्वल टू दिस वन प्लस माइनस 2j अपॉन पाई एफ and sine square pi f tv by 2. Okay, after that नेक्स्ट हमने क्या हुआ, हमने इस पी एफ में हमने ऊपर नीचे टी वी बाई टू से मल्टीप्लाई किया हुआ, बिकॉज हमें यहाँ पे इस साइन फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए जैसे कि अगर आप देखें इस लाइन में, अगर आप देखें किस तरीके से यहाँ पे पाई एफ टी वी बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये जो स्क्वायर का टर्म था इसको सेपरेट अलग अलग लिखा गया, यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया। नाउ सिंपली फाइनली वी गेट द टर्म प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये जे टर्म मिसिंग है, जे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये जे टर्म यहाँ पर आपका हो जाएगा जे टी वी, एंड दिस इज़ द सिग्नम फंक्शन, ये आपका एक सिग्नम फंक्शन हो गया। एंड फाइनली दिस इज़ द लास्ट टर्म एंड द साइन पाई एफ टी वी बाई टू। ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल हियर वी गेट द पी एफ फॉर द मैनचेस्टर कोडिंग। This is a very long term. Simply not simply a step trigonometries are involved in that case. Simple calculation है, थोड़ा ध्यान देकर हमें करना होगा। And finally again here use the formula of the PSD. PSD is equal to 1/TB PF squared summation n is equal to minus infinite से infinite alta 1 e to power minus j 2 pi n FTB। ये आपको मिल गया, आपने राइट भी कर लिया। And after that तो हमने ये राइट कर लिया। एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ हमने ये बताया था ऑटो कोलिशन का फंक्शन वही आपका जो था, जो एनआरजेड पोलर में था, सिंपली ए स्क्वायर हमने यूज कर लिया। बाकी वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड किया ही था, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड किया, यहाँ पे राइट कर दिया, स्क्वायर टर्म प्लेस कर दिया। एंड एट लास्ट वी गेट पीएचडी ऑफ द मैनचेस्टर कोडिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी वी एंड सिग्नम फंक्शन स्क्वायर एफ टी वी बाई टू, फिर साइन स्क्वायर पाई एफ टी वी बाई टू, ये आपको फाइंड हो गया। तो ये आपके चारों लाइन कोडिंग से किस तरीके से यहाँ पे पीएचडी फाइंड किया गया वो हम डिस्कस कर लिए हैं। नाउ हियर इज़ द कंपैरिजन किया गया है बाय यूजिंग ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट ग्राफ। अगर आप ग्राफ में देखें तो जो पहला जो आपका ए पार्ट है यूनिपोलर आरजेड है, मीन्स दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने आपसे बोला था कि सिग्नम फंक्शन की वजह से क्या कहते हैं आपका जो इम्पल्स फंक्शन के साथ ऐड था, तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका जो था वहाँ पे ए आपका ए स्क्वायर बाई टू था वहाँ पे, इसलिए ये हो गया आपका। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये 1/TB एंड 2/TB इसकी वैल्यू 0 होगी ड्यू टू द इम्पल्स फंक्शन, क्योंकि वहाँ इम्पल्स फंक्शन था आपका यूनिपोलर आरजेड में, ये हो गया। और मैक्सिमम जो इसका जो पावर कंटेन कर रहा है वो मैक्सिमम पहले ड्यूरेशन में लाई कर रहा है, 0 से लेके TB तक ही लाई कर रहा है, जो चीज़ें लिखी गई हैं। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पोलर एनर्जेड में सब कुछ वही था, एम्पलीट्यूड थोड़ा इंक्रीज कर गया था, इसलिए आपका थोड़ा ऊपर से बनेगा, आपका इस तरीके से ये बन गया। बाकी आपका एज सच है जो यूनिपोलर के लिए ही था। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा जो था थर्ड वाला जो सी वाला पार्ट था EMI जो था, जिसको हम बाईपोलर बोलते हैं। तो बाईपोलर के लिए जस्ट लाइक वहाँ पे आपका साइन का फंक्शन था, बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा आपका, क्योंकि आपका ऑलरेडी है। तो ये हमने एक साइन फंक्शन कैसे बना दिया, जो सी वाला ऐसे डॉट ये आपका हो गया दिस फंक्शन, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। दिस इज़ फॉर द EMI।
और एंड लास्ट इज़ द मैनचेस्टर कोडिंग। इन मैनचेस्टर कोडिंग ड्यू टू दिस फंक्शन, हमारा ये ओवरऑल दिस फंक्शन की वजह से, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन की वजह से ये मैक्सिमम पावर जो ये कंटेन कर रहा है दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके 2 तक फ्रीक्वेंसी मीन्स इसका बैंडविड्थ आपका इंक्रीज कर जा रहा है, मीन्स 2/2/TB तक, 2/TB तक या 2F तक ये पावर को कंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइन कोड के पीएचडी को डिस्कस किया, स्टडी किया 4 लाइन कोड्स को, और फिर हमने इसको ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन किया वो डिस्कस कर दिया हमने। ये ग्राफ आपको बनाना मस्ट है। अगर आपसे अगर सिंगल ही पूछे तो सिंगल ग्राफ बनाएंगे, अगर वो चारों अगर एक साथ पूछे तो आपको ये ग्राफ्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।